Good morning, class 1. As you know that we are learning English poem Ducks on the Water. Here, who is she? Duck. Ducks on the water. First we will sing the poem. Then we will do book exercise in English fairy book. First we sing this poem. Ducks on the water. Quack, quack, quack. Quack, quack is sound of the duck. Ducks on the water. Quack, quack, quack. Sailing down the river, then sailing back. Sailing down the river, then sailing back. Mother duck leads, duckling behind. Mother duck leads, duckling behind. Trim little swimmer in a straight line. Trim little swimmer in a straight line. Out of the river into the nest. Out of the river into the nest. Out of the river into the nest. Time for the family to have a rest. Time for the family to have a rest. Under her wings, mother duck tucks two little ducks and three little ducks. Under her wings, mother duck tucks two little ducks and two little ducks. All of you like this poem? Sing with me. Okay, after we are doing in book exercise, okay, page number 14. Okay, in this page we are seeing some fill-ups and two options are there. We have to choose only one. यहाँ पे क्या लिखी हुई है? कुछ fill-ups लिखी हुई है. उसमें कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शंस. हमको कौन सा चूज करना है? जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमको चूज करना है. Number 1 fill-ups. The duck swim in the dash. And 2 options are river and forest. River means नदी and forest means jungle. अब आपको बताना है the duck swim means duck swim कर रही थी. In the ducks कहाँ swim कर रही थी? River में या forest में? The answer is river. We will choose the river one and write down at here river. Now the sentence is the duck swim in the river. Duck कहाँ swim कर रही थी? Duck swim in the river. Now the second one, the mother duck. Everyone knows the second paragraph we have learned this line. The mother duck dash duckling. डकलिंग को मदर डक क्या कर रही थी? लीड्स और स्विम्स. लीड कर रही थी या स्विम कर रही थी? द मदर डक क्या कर रही थी? द मदर डक लीड्स डकलिंग बिहाइंड. वी हैव लर्न दिस लाइन ना. तो मदर डक क्या कर रही थी? लीड. तो वी विल चूज द लीड वन एंड राइट डाउन एट हियर लीड्स. नाउ द थर्ड वन. The ducklings follow their dash. डकलिंग्स जो थी, छोटे छोटे बेबी डक्स थे जिनको हम डकलिंग बोलते हैं, वो किसको फॉलो कर रहे थे? मदर और मास्टर. किसको फॉलो कर रहे थे? डकलिंग किसके पीछे पीछे चल रहे थे? मदर के पीछे चल रहे थे या मास्टर के? द आंसर इज मदर. मदर के पीछे चल रहे थे. तो वी विल रीड दिस सेंटेंस. द डकलिंग्स फॉलो देयर मदर. डकलिंग किसको फॉलो कर रहे थे? अपनी मदर को. द डकलिंग फॉलो देयर मदर. नाउ द नेक्स्ट वन. द डक्स डैश इन अ स्ट्रेट लाइन. डक स्ट्रेट लाइन बना के क्या कर रहे थे? हॉप और स्विम. हॉप मीन्स कूद कूद के जाना. स्विम मीन्स
तैरना। अब आप बताओ, द डक्स डैश इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन बना के क्या कर रहे थे, हॉप कर रहे थे या स्विम कर रहे थे, स्विम कर रहे थे ना, द करेक्ट वन इज स्विम। तो वी विल राइट डाउन swim at here and the sentence is the ducks swim in a straight line. Number 5 is the ducks rest in their dash house or nest. जो डक है वो कहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, हाउस में कर रहे थे या नेस्ट में कर रहे थे। तो हमने लाइन क्या करी थी, आउट ऑफ द रिवर इनटू द नेस्ट, क्योंकि डक का जो होम होता है वो ही नेस्ट होता है। तो डक कहाँ पे रेस्ट कर रही थी, नेस्ट पे। तो वी विल राइट डाउन नेस्ट एट हियर। आई विल रीड दिस लाइन वन मोर टाइम, द डक्स रेस्ट इन देयर नेस्ट। नाउ 6, द लास्ट फिलअप्स, मदर डक्स टक्स, मदर डक ने टक्स कर रखा था, मदर डक टक्स द बेबी डक्स अंडर हर डैश, नेक में टक्स किया था या विंग्स में टक्स किया था, मदर डक ने अपने बेबीज को, डक्स को किस में टक्स किया था, विंग्स में। तो वी विल चूज विंग्स एंड राइट डाउन एट हियर विंग्स। आई विल रीड वन मोर टाइम दिस सेंटेंस, मदर डक टक्स द baby ducks under her wings, baby ducks under her wings. After that, look at the picture. Here is some animals and here is their babies. यहाँ पे animals है, यहाँ पे उनके babies है. We have to match animals with their babies. Okay, first number पे कौन है, टाइगर है। तो टाइगर के जो बेबी होते हैं उसे क्या कहते हैं, CUB, कब। जो टाइगर का बेबी होता है उसे हम कब कहते हैं। तो वी विल मैच टाइगर विथ कब, और कब के सामने हम क्या लिख देंगे, 1। हैन, हैन का जो बेबी है उसे हम क्या कहते हैं, द बेबी ऑफ हैन इज चिक, तो हम इस चिक के सामने नंबर 2 कर देंगे। काऊ के बेबी को हम क्या बोलते हैं, काफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ काऊ बेबी, काउस बेबी नेम इज काफ, तो हम जो काफ है वहाँ पे हम 3 लिख देंगे। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पप्पी, तो वी विल राइट डाउन, वी विल मैच डॉग विथ पप्पी। कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं, किटन, तो कैट को हम किससे मैच कर देंगे, किटन से। नाउ वी विल कम ऑन पेज नंबर 15. In this page we have seen some words are written at here, my mother, she, and here is a helping box. We have to choose one options from here and complete this sentence. I will explain you how can we do this. For example, my mother, number 1, then the long dash is over here like this, mother, and the long dash is here. I have take one sentence from here, tucks me into bed, and I will write down this line at here, my mother tucks me into the bed. I will write down the sentence, TUCK, tucks me into bed. Okay, now the second one, she. So I will take one more sentence from here and complete this sentence. Makes lunch, मम्मा lunch बनाती है ना, तो she makes lunch. Number 3, she helps me get dressed. Now next one, she tells me stories. यहाँ से she लेना है और ये helping box से आधा sentence लेकर के कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। नाउ नंबर 5, शी प्लेज विथ मी, ठीक है, यहाँ से लेकर के हमें यहाँ लिखना है। शी टेक्स मी टू द मार्केट, मार्केट में लेके जाते हैं। तो दिस इज़ अ वन वर्ड एंड दिस इज़ अ हाफ सेंटेंस। आफ्टर दैट यहाँ से एक पिक करके हम यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट वन को पिक करके यहाँ लिखेंगे और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। और ये सारे सेंटेंस किससे रिलेटेड है, ये सारे सेंटेंस है मदर से रिलेटेड। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, डक इज़ हियर, और एक स्मॉल डकलिंग भी है यहाँ पे। तो वी हैव टू कलर दिस पिक्चर, इस पिक्चर को हम ब्यूटीफुल कलर करेंगे। डक एंड डकलिंग, डक है और डकलिंग है, दोनों है।
After that, the last one, write the new words that you have learned in this poem. इस पोएम में जो भी हमने नए वर्ड सीखे थे वो हम लिखेंगे. हमने कौन कौन से वर्ड ऐसे सीखे जो हमने पहले कभी नहीं सीखे. जैसे कि हमने सीखा टक्स. टक्स हमने नया सीखा ना. टक्स मीन्स कवर करना. सेकेंड हमने सीखा डकलिंग. डकलिंग भी पहले हमने कभी नहीं बोला था. डकलिंग कौन होते हैं? बेबी ऑफ द डक. और थर्ड नंबर हमने एक अच्छा सा सीखा था वर्ड लीड करना. तो आई विल राइट डाउन ऑल ऑफ दीज वर्ड ऑन द बोर्ड. These are the three words: ducks, ducklings and leads. So this poem book exercise is complete here. Goodbye everyone.